Yes. Okay. Arre baap re. Okay. Good afternoon, all of you. Now we have to be very serious because limited time only we are getting for our class, only 30 minutes. And I hope that you better understand me whatever I explain you. And if you don't understand, you just ask me, I'll repeat it. Yesterday I send you so many notes also. Whenever you will just get it time, complete it in your Hindi notebooks, grammar part and everything. Because workbook, most of the students are not having with them. But whatever I am giving, you have to complete it and you have to learn in your holidays. Till 15th only, we are going to continue your this e-classes. Afterwards, 15 days, again, you will get the holidays. It's a summer vacation holidays. So in those holidays, you have to just complete your work. You have to mix, learn it perfectly. Okay. Is still our first lesson and second lesson. Some few exercises I think so are left. That also I'll send it on Sunday, tomorrow. And best of luck for your tomorrow's exam. Maybe I think algebra and science exam is there. Okay. You just follow the instructions carefully. Okay. Now, as usual, our story time. Yes, very good afternoon, all of you. So I have to give a short story today because I have to complete this fifth lesson. Only few days are left. Now, okay. Yes. Now you see, it's a story time. A man has two sons. Man has two sons and three daughters. They stood all around his wife's hospital bed. Now, according to the situation, what's going on day by day, after taking so many precautions, this coronavirus is increasing in Aurangabad also. At present, we are on the fourth stage. First is Mumbai, second Pune, third Malegaon, and fourth Aurangabad. So we have to take still more and more precautions, and you have to just follow the rules and regulations what the government says. Seriously, that's why this ratio is increasing. So here now this situation is also of a hospital only. A man has two sons, three daughters, and they all actually stood around to his wife's hospital bed as she uttered her last coherent words before she died. Means she actually said something to his family members, to her family members. So this is what she said. We just come to know. I feel so loud right now. What happens when we just grow up? We just busy ourselves. Some maybe with their studies, some maybe with their um, doing jobs somewhere. Maybe it is not confirmed that we are going to stay here in India, or some students or some persons will move to other countries also. Like this way it happens. But we never think about our parents, that how lonely they feels. When we are grown up, this realization should be there. Yes, definitely, even they feel because they were used to of attachment with their kids and everything, and they do whatever we need. Here they help us, but when we just grown up, we never cares for them. So this is actually which words what that lady said before she died. Now she was just telling that I'm feeling very happy to see you, all of you around, you just standing around my bed. I feel very nice, and even I want to live more. I want to enjoy with you all. But we know that she don't have a sufficient time, that only few seconds she's just only having. But at the last time when she finds that all the kids are standing and they are just watching me carefully, so only these words she said, that I want to live more. That moment she wants to enjoy, that moment she wants to realize what she spent, how much she spent with her family. She wants to just recall it, recall those words, recall those time. But no, time is over. And once
is over. No one will get, no one, even the near dear ones. So here what I want to say, always you have to just attach with your friends, with your family members. How much time you just enjoy this time also with your family. Think about it. Yes, this is only the time we have to spend with our family, because always now you see professional achievements always are temporary basis only, but they come and they again go, again they'll come, they go, because they are the professional achievements, not a personal. But personal loss is a permanent. When those students, those family members lost their mother, it's lost. Once she died, never going to come it back again. So this loss will be a loss only. So this is a personal loss what they had. So before she died, she wants to tell her family members that I want to live longer. I want to spend some time, but she didn't get. So we have to here understand this situation happens with all us. So better this time enjoy with your family, because again and again this time is not going to come. Once a loved one is gone, they never come back again. So please, here it's a request. Press somewhere your pause button and spend time with your loved ones to whom you just love. Wherever you find, you just help someone, give a smile, and love them. This only I want to say in my story. Okay, now we will start with our lesson, Goa. जैसा मैंने देखा. Yesterday I informed you that it's a tourist place and a beautiful place. Once, when you just get time, those who has not visited, go and visit it once. Okay, as this is a Hindi subject, so I have to just explain you this lesson in Hindi. My story time is finished. So here we will start our Hindi lesson. Lesson number 5, गोवा जैसा मैंने देखा. यहाँ पे ऑथर कह रहे हैं कि मैंने जैसे गोवा देखा. हर एक का अपना अपना नजरिया होता है देखने का, कि हर कोई अपनी एंगल से देखता है. कई इंसान अपनी तरीके से देखता है. आज मैंने जैसा देखा वो मैं शेयर करूंगी आपके साथ में, लेकिन ऑथर ने जैसे देखा वो अपना शेयरिंग कर रहे हैं स्टोरी में. इसलिए स्टोरी का नाम ही है गोवा जैसा मैंने देखा, क्योंकि ऑथर ने जैसा देखा वही लिखा और वही हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं. हो सकता है कि आप जब जाओगे आप अपने तरीके से शेयर करोगे, आप अपने नजरिए से बताओगे कि आपने कैसे देखा. तो यही एक चीज है कि हर एक अपना अपना नजरिया यहाँ पे शेयर करता है. सो okay, we will just start this third paragraph. Already yesterday I completed 2 paragraphs. इसमें कुछ आपको डाउट्स हैं क्या ये 2 पैराग्राफ्स में जो मैंने अभी तक आपको कल समझाया था? अगर नहीं है तो फिर मैं 3rd पैराग्राफ से कंटिन्यू करूं. ओके, 3rd पैराग्राफ. कुछ देर बाद हमारी टैक्सी मडगांव से 5 किलोमीटर दूर दक्षिण में स्थित कस्बा बेनालियम के एक रिसोर्ट में आकर रुक गई. मैं अगर आपको ये 3rd पैराग्राफ अभी एक्सप्लेन करूं तो इसके पहले मैं आपको एक चीज बताती हूँ कि गोवा जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड है. जैसे मैंने कल आपको हैदराबाद का बताया था कि एक पार्ट जो है सिकंदराबाद है और एक पार्ट हैदराबाद है. उन दोनों के बीच में आता है हुसैन सागर लेक. ठीक है, तो यहाँ पे भी गोवा 2 पार्ट में डिवाइड है. एक है दक्षिण मीन्स एक है साउथ गोवा एंड एक है नॉर्थ गोवा. ये 2 इसमें डिवाइड है. तो अभी ये लोग जो यहाँ पे जा रहे हैं टैक्सी से, वो है 5 किलोमीटर दूरी की दक्षिण गोवा की. दक्षिण में स्थित कस्बा बेनालियम के एक रिसोर्ट में आकर रुक गई. एक रिसोर्ट, वहां पे रिसोर्ट्स रहते हैं, होटल रहते हैं. रिसोर्ट मीन्स उसमें आपको रूम्स वगैरह बहुत अच्छे रहते हैं, फैसिलिटीज काफी अच्छी रहती है. थोड़ा सा कॉस्टली जरूर रहता है, बट रिसोर्ट में एक अच्छी चीज होती है कि यू विल गेट अ स्विमिंग पूल ऑल्सो. आपको अपना एक
स्विमिंग पूल भी मिलता है उसी के अंदर। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग जब सारा दिन थक मान के घूम के आएंगे सिटी गोवा, तो थकावट जरूर होती है। तो कभी कभी रिलैक्समेंट के लिए हम अपने रूम में भी रहेंगे, और जो बाहर में स्विमिंग पूल में जो स्विमिंग करते रहेंगे उसका भी मजा ले सकते हैं। और अगर हमको खुद को भी मजा लेना है उस स्विमिंग पूल में उतर के, तो वो भी ले सकते हैं। उसके लिए हमको बाहर कहीं और स्विमिंग पूल्स में न जाना पड़ेगा। रिसोर्ट की खासियत ही ये रहती है कि वो एक स्विमिंग पूल के साथ अटैच रहता है। यह रिसोर्ट हमने पहले से ही बुक कर लिया था। यस, इसने ऑथर ने पहले से ही ये बुक करके रखा था, क्योंकि आजकल तो ऑनलाइन बुकिंग है, आप कभी भी बुक कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपका ट्रिप आपको कंफर्म है कि आपको जाना है, तो आप डेट्स वगैरह पहले से ही अगर डिसाइड कर लेते हैं तो आप ऑनलाइन बुकिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे ऑथर ने भी ये बुकिंग पहले से ही ऑनलाइन कर लिया था। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि सीजनल्स जो सीजनेबल टाइमिंग रहता है, जैसे कल मैंने आपको बताया कि वहाँ का जो फंक्शन टाइम रहता है, जो सीजन टाइम रहता है, वो मतलब नवंबर वगैरह से स्टार्ट हो जाता है। बिकॉज दिसंबर में जो है वहां पे क्रिसमस का बहुत ज्यादा बड़ा सेलिब्रेशन रहता है। क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा क्रिश्चियंस लोग रहते हैं। क्रिश्चियन क्रिश्चियन मिशनरिटी के कारण में कैथोलिक्स बहुत ज्यादा रहते हैं, तो बहुत अच्छे तरीके से। और क्रिश्चियंस का ये एक ही फेस्टिवल है। हमारे हिंदूज का कई ज्यादा रहता है, बट क्रिश्चियंस का ये एक रहता है जो वो लोग सेलिब्रेट करना चाहते हैं। हार्डली एक या दो ही रहते हैं जो एक फीस्ट रहता है उनका, और ये एक रहता है, ये सबसे ज्यादा रहता है। तो इसके लिए बहुत ज्यादा रश रहता है। और कई सारे स्कूल्स वगैरह में भी ये अपने हॉलीडेज भी रहते हैं, क्रिसमस हॉलीडेज। तो सभी जन को रहता है कि हाँ, हम वहाँ पे विजिट करें और देखें। तो ऐसा ही ये भी एक है कि उन्होंने अपना ये जो ट्रिप था वो बुक करके रखा था, और ये रिसोर्ट भी ऑनलाइन बुक कर लिया था। इसलिए औपचारिक खाना पूर्ति कर हम आराम करने के इरादे से अपने अपने स्यूट में चले गए। यहाँ पे स्यूट का मीनिंग मैं बता रही हूँ आपको कि ये एक रूम है। ये होटल्स वगैरह में आप लोगों ने देखा होगा, रेस्टोरेंट्स वगैरह में, कि रूम्स रहते हैं अपने अपने पर्सनल। तो यहाँ पे स्यूट का मीनिंग है कि वो अपना अपना एक रूम है। तो वो रूम में जाके अपना अपना आराम करने लगे। क्योंकि उन्होंने पहले से ही होटल्स वगैरह बुक कर लिया था, रिजॉर्ट बुक कर लिया था। और कैसे होता है ना कि अगर हम समझो बुकिंग नहीं करते हैं अपना होटल्स या रिजॉर्ट्स वगैरह का, और डायरेक्टली जाने के बाद में अगर हम सोचते हैं, तो इसमें हमारा बहुत ज्यादा टाइम जाता है। और दूसरा चीज, हमें शायद समय पे कुछ अच्छा ना मिले, क्योंकि हम पहले ही ट्रैवलिंग से थक जाते हैं। और ये तो ऐसा होता है, अगर हमने बुक कर लिया, हमारी ट्रिप बुक है, हमारा कंफर्म है, हमारे रिसोर्ट्स बुकिंग है, सब चीज है, तो हमारी टाइम टेबल भी पूरी रेडी रहती है। तब हम ऐसे करते हैं कि टैक्सी हायर कर लेते हैं, और टैक्सी वाले से डायरेक्टली हम लोग कहते हैं कि सर हमें ये रिजॉर्ट में छोड़ दो, तो वो बराबर छोड़ देते। तो हमारा सारी थकावट यहाँ पे होने का कोई मतलब ही नहीं आता। और डायरेक्ट उन्होंने क्या किया, औपचारिक यानी फॉर्मेलिटी की तरीके से अपना खाना पूर्ति वगैरह कर लिया, जो जो उनको खाना था। और कई रिसोर्ट्स में तो आजकल ये भी होता है कि हमारे पैकेज में हमारा ब्रेकफास्ट वगैरह भी ऑलरेडी कंफर्म रहता है। तो हमें ज्यादा, और ये लोग सुबह सुबह के ही टाइम पे उतरे थे, और उन्होंने क्या किया, अपने अपने रूम में चले गए। इससे पहले कि हम कमरों से बाहर निकलें, मैं आपको गोवा की कुछ खास बातें बता दूं। तो जैसे ये लोग कमरों में चले गए, अपना आराम करने लगे, आराम करने के बाद में जैसे ही वो बाहर निकले, तो यहाँ पे हमारे ऑथर कह रहे हैं कि हम जैसे ही अपने कमरों से बाहर निकले, मैं आपको गोवा की कुछ खास बातें बता दूं। अभी ये ऑथर क्या खास बातें बताते हैं तो हम देखते हैं। दरअसल गोवा राज्य दो भागों में बटा हुआ है। यस, इसके पहले मैंने भी आपको बताया कि गोवा जो है दो पार्ट्स में डिवाइड है, दक्षिण गोवा जिला तथा उत्तर गोवा जिला। उत्तर मीन्स नॉर्थ, दक्षिण मीन्स साउथ, दो में डिवाइड है, नॉर्थ गोवा एंड
साउथ गोवा। और कुछ कुछ जो बीचेस हैं वो भी जो फेमस, मैंने कहा था पूरा ऑल ओवर गोवा में टोटली 40 बीचेस है। 40 बीचेस में सिर्फ कुछ गिने चुने एक 6-7 बीचेस ही बहुत अच्छे हैं, जहाँ पे बहुत ज्यादा पब्लिक जाने को पसंद करती है। और इन बीचेस में जाने से हमें मजा भी बहुत आता है। वहां पे आप लोग पैराग्लाइडिंग भी कर सकते हैं, बोट राइडिंग भी कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें हैं। और कुछ कुछ बीचेस में तो ये भी परमिशन है कि आप स्कूबा डाइविंग भी कर सकते हैं। तो ये गोवा में आप लोग सभी चीजें कर सकते हैं। तो ये जो मेन बीचेस है ना वो दक्षिण गोवा में है। तो ऑथर, ये मैंने मेरा शेयरिंग किया है, ऑथर ने नहीं बताया है। ऑथर अब बता रहा है कि गोवा 2 पार्ट्स में डिवाइड है। एक तो है दक्षिण गोवा एंड दूसरा है उत्तर गोवा। इसकी राजधानी पणजी, इसकी जो गोवा की जो राजधानी है, द कैपिटल सिटी ऑफ गोवा इज पणजी। पणजी इसकी, जो पणजी है वो मांडवी नदी के किनारे स्थित है। मांडवी नदी है, हालांकि वो तो बहुत सारे बीचेस से फुल है, लेकिन वहां पे जो नदी है, जहाँ पे पणजी जो राजधानी गोवा की है, वहां पे मांडवी नदी के किनारे स्थित है। मतलब मांडवी नदी के किनारे के पास ही पणजी द कैपिटल गोवा का वहां पे स्थित है। यह नदी काफी बड़ी है तथा वर्ष भर पानी से भरी रहती है। यस, क्योंकि गोवा एक फुल अपने एक बीचेस से भरा वाला है। इससे इसकी वजह से गोवा फुल बीचेस की वजह से भरा है। इसकी वजह से वो नदी हमेशा पानी से, मांडवी नदी हमेशा पानी से भरी रहती है, इसका कारण नहीं है। वो इस वजह से भरी रहती है क्योंकि वहां पे मैंने कल भी बताया था कि गोवा का जो एटमॉस्फेयर है ह्यूमिड तो है, एक चिपचिपा तो माहौल रहता है, बट कहीं ना कहीं वो मुंबई से कम है। उसका एक ही रीजन है कि गोवा में ग्रीनरी ज्यादा है। ग्रीनरी जहाँ ज्यादा रहती है वहां पे वो एटमॉस्फेयर जो टेम्परेचर रहता है वो कम रहता है। ह्यूमिड रहेगा ही, लेकिन इतना ज्यादा नहीं रहेगा जितना गोवा में रहता है। तो इस नदी में, इस मांडवी नदी में पूरा साल पानी रहता है, कभी वो सूखती नहीं है। इसलिए तो कहते हैं कि आप लोग अपने पूरे सराउंडिंग्स पेड़ पौधे लगाओ, ताकि बारिश अच्छे से होगा तो ग्रीनरी ज्यादा रहेगी, ताकि हमारे नदियों में हमेशा पानी भरा रहेगा। तो वो नदी, मांडवी नदी कभी भी सूखती नहीं है। फिर भी समुद्री इलाका होने के कारण यहाँ मौसम में प्रायः उमस तथा हवा में नमी बनी रहती है। उमस मीन्स एक सफोकेशन टाइप का रहता है, एक गरम, एक ह्यूमिड, जो मैंने आपको बताया सुबह सुबह वो हमें दिखता है। और हवा में भी कुछ नमी रहती है, मतलब इतना ग्रीनरी होने के कारण। लेकिन बीचेस है तो बीचेस का तो वो रहेगा, एंड वो एक टूरिस्ट प्लेस है तो पॉपुलेशन भी ज्यादा रहेगा, मतलब आना जाना लोगों का बहुत ज्यादा रहता है। तो हवा इतनी प्यार नहीं मिलेगी जितना हम लोग रायगढ़ वगैरह की लाइंस में जाएंगे, जो रत्नागिरी वगैरह, वहां पे ग्रीनरी है, वहां पे भी बीचेस हैं, लेकिन फिर भी जो पब्लिक इतनी नहीं रहेगी। गोवा में पब्लिक ज्यादा रहता है बिकॉज ऑफ द टूरिस्ट प्लेस। यस 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 यस, एक एक शायद एक ही शायद पेशेंट एक ही मिला है गोवा में, वो भी अभी रिसेंटली। इसके पहले उसकी देखो कि गोवा में इतना सारा, क्योंकि टूरिस्ट प्लेस है वो तो, और कोई टूरिस्ट अभी जा ही नहीं रहा है विजिट करने के लिए। तो वहां का एक ही सिर्फ अभी तक पॉजिटिव केस कोरोना का मिला है। तो अच्छी लाइफ जी रहे हैं वहां के। हमारे औरंगाबाद को भी हमको कोरोना मुक्त करना पड़ेगा, बट पता नहीं अब ये कैसा होगा, क्योंकि डे बाय डे आज का तो शायद मेरे ख्याल से 500 से ज्यादा हो गया है। तो गोवा का जो है एक ही पेशेंट हुआ है, कई दिनों तक गोवा में कोई भी नहीं था। आज भी गोवा बहुत अच्छी तरीके से है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, अब हमको रहना यहाँ है तो यहाँ के बारे में भी सोचना पड़ेगा। अब वहाँ का एटमॉस्फेयर हमें ऑथर शेयर करके बता रहे हैं कि वहाँ की हवा भी थोड़ी सी नमी नमी रहती है, मतलब एकदम से इतना फ्रेश एयर नहीं मिलता है। जब से ये लॉकडाउन शुरू हुआ है तब से हमारा एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा हो गया है, बहुत हमें फ्रेश एयर मिल रही है।
और हम चारों तरफ ग्रीनरी देख सकते हैं, क्योंकि नॉइस पोल्यूशन नहीं है, एयर पोल्यूशन नहीं है, और कई सारी अभी तक फैक्ट्रीज भी इतनी सारे ओपन नहीं है जितनी होने चाहिए ऑल ओवर इंडिया में। इसके कारण हमारा जो नदियों का पानी भी है कि अगर हमने कभी विजिट किया, अगर हमें टीवी पे भी दिखा रहे हैं कि उसमें पानी इतना प्योर लग रहा है, जो डायरेक्टली कंपनियों का वाटर रहता था, जो इम्प्योर वाटर रहता था, वो कंपनियों का जो वाटर है वो नदियों से जाके कनेक्ट हो जाता था। अभी वो सब नहीं हो रहा है, जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज जो बंद है, तो पानी नदियों का फ्रेश हो गया है। मेरा कहने का मतलब है कि नदियों का पानी जो है बहुत फ्रेश हो गया है। लेकिन अब जैसे ये सब स्टार्ट हो जाएगा, वापस वैसे ही हो जाएगा। और भगवान ने अगर इन सबको फ्रेश रखा है, तो कहीं ना कहीं हमारे मुंह पे मास्क लगा दिया है, हम फ्रेश एयर अभी भी उतनी नहीं ले पा रहे हैं। सो उस हवा में भी एक नमी बनी हुई है, शरीर चिपचिपाता रहता है, लेकिन मुंबई जितना नहीं। यस, मैंने पहले आपको बताया कि मुंबई में बहुत, क्योंकि मुंबई में ग्रीनरी नहीं है, और यहाँ पे गोवा में ग्रीनरी रहने के कारण ही ये इफेक्ट है कि इतना ज्यादा चिपचिपा तो रहता ही है। जहां आप कोस्टल रीजन्स में जाएंगे, जिसमें भी जो भी कोस्टल एरिया, जैसे मरीना बीच है चेन्नई का, आप जाएंगे तो वहां पे भी है मरीन ड्राइव्स, और ये सारे जुहू बीचेस वगैरह जो मुंबई के हैं। आप कितना भी जाओ, मुंबई का जो एटमॉस्फेयर रहेगा वो चिपचिपा ही रहेगा। बहुत ज्यादा ऐसा लगता है कि वहां जाने के बाद में दिन में 2-3 बार, और वहां पे विंटर भी इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं होता है। ऐसा लगता है वहां पे 24 आवर्स अपने को एसी चाहिए, और दूसरा चीज 2-3 बार तो नहाना ही चाहिए। ये सारा चीज होता है बिकॉज ऑफ द पॉपुलेशन, एंड बिकॉज वी डजंट फाइंड एनी ग्रीनरी देयर। पॉपुलेशन इतना ज्यादा होता है, फैक्ट्रीज, पब्लिक इतना ज्यादा है, वर्किंग लोड, तो कहीं वहां पे ग्रीनरी आपको नहीं मिलेगी। लेकिन मुंबई जितना चिपचिपाता नहीं है, ये ऑथर बता रहे हैं, क्योंकि यहाँ का क्षेत्र हरितिमा से भरपूर, हरितिमा मीन्स ग्रीनरी से भरपूर है। फिर भी धूप तो तीखी ही होती है। यस, सीजन के हिसाब से तो पूरे सीजन्स वैसे ही रहेंगे जैसे हमें बाकी रहते हैं। यूं तो गोवा अपने खूबसूरत सफेद रेतीले तटों, महंगे होटलों तथा खास जीवन शैली के लिए जाना जाता है, लेकिन इन सब के बावजूद यह अपने में एक सांस्कृतिक विरासत भी समेटे हुए हैं। यस, मैंने कल भी आपको बताया था कि उनका ट्रेडिशन एकदम अलग है। गोवा खूबसूरत तो है क्योंकि वहाँ की रेती भी बहुत सफेद होती है। वहाँ के जो तटों मीन्स जो उनके किनारे, समुद्र के किनारे जो हैं, उनके उनके तट यानी उनके बैंक्स जो उनका किनारा रहता है वो बहुत रेतीला रहता है। चलना बहुत हार्ड रहता है वहां पे, आप ज्यादा स्पीड से चल नहीं पाएंगे, तो क्योंकि वो रेत से पूरे भरे हैं। तो गोवा में मोस्टली बीचेस रहने के कारण वहाँ की रेत भी बहुत खूबसूरत है, मतलब एकदम अच्छी है, चमकीली रहती है, और बहुत ही सॉफ्ट रहती है, स्मूथ रहती है। महंगे होटल पाएंगे हम वहाँ पे, यस, क्योंकि टूरिस्ट प्लेस है तो महंगे होटल तो रहेंगे ही, तथा खास जीवन शैली के लिए जाना जाता है। यस, खास खास जीवन शैली मीन्स उनका सब कुछ अलग है, उनका खाना, उनका रहना, उनका टॉकिंग, उनकी संस्कृति, हर एक चीज अलग रहती है। इन सब चीजों से गोवा भरा पड़ा है, मतलब सभी टाइप के ऑल ओवर इंडिया, बाहर से भी, विदेशों से भी लोग आते हैं और विजिट करते हैं, तो उनको हर एक चीज यहाँ पे अच्छी लगती है, सबको बहुत मजा आता है। एक फिल्म फेस्टिवल भी वहां पे ऑर्गेनाइज होता है एवरी ईयर, जैसे यहाँ पे एलोरा में होता है वैसे गोवा में भी होता है। तो ये सारी चीजें बहुत अच्छी लगती है देखने को, और बहुत मजा आता है। अगर आप लोगों में से जिसने भी विजिट नहीं किया हो तो जरूर एक बार विजिट करके आना। यहाँ की शाम बड़ी अच्छी होती है, तो चलो इस शाम का आनंद लेने अब यहाँ पे शाम का आनंद लेने के लिए बेनिलिया बीच की ओर चलें। अब यहाँ पे ऑथर कह रहे हैं कि हम अभी
आगे चलते हैं। शाम का समय हो रहा है, तो हम लोग अभी कोई और बीच पे जाते हैं। वहां पे बहुत सारे बीचेस है, हर एक बीचेस का अपना अपना नाम है। तो अभी ऑथर कह रहे हैं कि हम लोग बेनेलिया बीच की ओर चलते हैं। आप भी चलें, क्योंकि बहुत ही खूबसूरत तथा शांत जगह है बेनेलियम। बेनेलियम ये जो बीच है ना, बहुत ही शांत है, खूबसूरत भी बहुत है और बहुत शांत भी है। ऑथर कह रहे हैं कि आप लोग भी हमारे साथ चलो। कल जब मैंने कहा था कि आप लोग स्टोरी तो सुनो, लेकिन इमेजिन करो कि यस, अभी आप लोग गोवा में हो और गोवा के बेनेलियम बीच में ही हम ऑथर के साथ जा रहे हैं। दिन भर की थकान तथा उमस भरी गर्मी के बाद शाम को बीच पर जाना बड़ा अच्छा लग रहा था। यस, शाम में जब हम लोग दिन भर थक जाते हैं तो बीचेस पे जाते हैं, तो वहां पे काफी सारा रिलैक्समेंट रहता है, हम लोगों को एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन वहां जाने के बाद हमें पानी से निकलने का मन नहीं करता। ऐसा लगता है बस बीचेस पे गए, सिर्फ पानी में मस्ती करें, कूदें, थोड़ी देर आराम करें। लेकिन वो पानी से दूर हम अपने आप को नहीं कर सकते। जब भी देखते हैं फिर से ऐसा लगता है वापस पानी में उतरे, क्योंकि वहां का मजा ही बीचेस है। तो ऑथर कह रहे हैं कि दिन भर की थकान तथा उमस भरी गर्मी के बाद शाम को जब वो बीच, कई जन ऐसे रहते जो बुजुर्ग रहते, वो लोग यही सोचते हैं कि हम वो बीच पे जाएं और आराम से लेटे रहें, और कुछ जो रिसोर्ट्स हैं, जो होटल्स हैं, बीचेस पे भी अवेलेबल रहते हैं, और हम उनसे कुछ खाना ऑर्डर करें और बीच पे बीच का आनंद लेते हुए खाना खाएं कुछ भी। तो रिजॉर्ट से बीच की दूरी कोई 1 किलोमीटर ही थी, लेकिन जल्दी जल्दी चलने के बाद भी यह दूरी तय हो ही नहीं पा रही थी। मैंने कहा कि वहां पे बीच का इलाका है, पूरा बीचेस से भरा पड़ा है, तो इसलिए रिसोर्ट ज्यादा रहने के कारण वहां पे हम लोग ज्यादा स्पीड से नहीं चल सकते। हालांकि उनका जो रिसोर्ट है वो सिर्फ 1 किलोमीटर की दूरी पे था। वो जहाँ बेनालियम बीच पे जो रुके थे, वहां से उनका रिसोर्ट सिर्फ 1 ही किलोमीटर दूर था। चलते चलते भी उनको ऐसा लग रहा था कि हम तो बहुत दूर चले, लेकिन इतनी दूरी पार करने के बावजूद भी 1 किलोमीटर जल्दी नहीं चल पा रहे थे। 1 किलोमीटर की दूरी जल्दी नहीं खत्म हो पा रही थी। जल्दी जल्दी चलने के बाद भी यह दूरी तय हो ही नहीं पा रही थी। अरब सागर देखने का उत्साह बढ़ता ही जा रहा था। अरब सागर, वहां पे एक अरब सागर, 5 ओशंस में वो कह रहे हैं कि अरब सागर जो है वो हमें देखने का बहुत ही ज्यादा मन था, ऑथर का मन था। तभी अचानक लहरों की आवाज सुनाई दी, जो किसी रणभेदी की तरह थी। रणभेदी की मतलब जो जैसे हम लोग फाइट करने उतरते हैं, जैसे महाभारत वगैरह का जो हो रहा था, तो कुरुक्षेत्र, तो एक डरावना सा आवाज आता है शाम में। बीचेस में से जब लोग सब अपने घर पे वापस जाने लगते हैं, अपने अपने होटल्स में, अपने अपने रिसोर्ट्स में, तो आवाज थोड़ी सी भयानक लगने लगती है। तो वो कंपेयर कर रहे हैं कि जब वो आवाज सुनाई दी अचानक, और हमें नहीं पता है कि आगे क्या है, कि आगे हमें किसकी आवाज सुनाई दे रही है, बट जब वो लहरों की आवाज सुनाई देती है तो एक एक अलग ही मन से, हल्का हल्का मन से थोड़ा थोड़ा अंदर ही एक डर भी थोड़ा सा लगने लगता है। हम सभी दौड़ पड़े और उन्होंने दौड़ना शुरू कर दिया। सड़क पीछे छूट गई थी, इसलिए रेत पर तेजी से दौड़ना मुश्किल हो रहा था। यस, सड़क उनकी कहीं दूर ही छूट गई और वो रेतीले इलाके में चल पड़े, क्योंकि उनको लगा कि यहाँ से कुछ ना कुछ तो अभी बहुत बड़ा है जो बीच की तरफ खींच रहा है, या तो कोई सागर की तरफ खींच रहा है। ऐसा खींचने के उस चक्कर में इन लोगों ने रोड छोड़ दिया और रेतीले इलाके में पहुंच गए, जहां से वो दौड़ नहीं पा रहे थे और उनको धीरे धीरे ही चलना है। टाइम इनसफिशिएंट रहने के कारण हमें हमारी स्टोरी को यहीं ब्रेक करना पड़ेगा। आप लोग ये लेसन रीड करो और इसके वर्ड्स मीनिंग्स लर्न करो, देखते जाओ, और जो मैंने होमवर्क दिया है कल, वो आप लोग सब अपनी नोटबुक में लिखते जाओ जैसे जैसे आपको टाइम मिल रहा है, बिकॉज हमारा लेसन नंबर 1 और लेसन नंबर 2 के और बहुत सारे एक्सरसाइजेस बाकी है,
वो भी मैं देने वाली हूँ, और ये सब कंप्लीट करो। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, जो नेटवर्क कनेक्टिविटी के कारण कनेक्ट नहीं हो पा रहे, लेसन अटेंड नहीं कर पा रहे, तो मैं उन सभी लोगों को रिकॉर्डिंग्स भी भेज रही हूँ, और हम लोग डेली अटेंडेंस ले रहे हैं कि आप लोग कितने लोग ये क्लास अटेंड कर रहे हो। जब आप लोग ये क्लास अटेंड नहीं करोगे तो स्कूल रीओपन होगा, तो हम लोग आपको 8 डेज अलाउ नहीं करेंगे। अगर आपका नेटवर्क कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम है देन इट्स ओके, बट हर दिन यहाँ पे हमने स्टार्टिंग में जैसे क्लास स्टार्ट किया था, बहुत सारे स्टूडेंट्स ज्वाइन हो रहे थे, लेकिन अब डे बाय डे वो कम कम होते जा रहे थे। इसलिए हमने ये उठाया है कि जो भी यहाँ पे क्लास अटेंड नहीं करेगा उसको 8 डेज हम लोग स्कूल में अलाउ नहीं करेंगे। So better you just join the classes, and because of this network connectivity you are unable to join the class, we are sending the recordings. Better you just watch our recordings and write it. Okay, thank you all of you. Take more and more precautions. Stay home, stay safe. Thank you all of you once again. Bye.